Hello everyone, my name is Ankita Rai. Previous class में we had discussed about the electron transport system or the electron transport chain of the chapter respiration in plants. आज हम लोग oxidative phosphorylation के बारे में स्टडी करेंगे and किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो वो किस तरीके से एज अ प्रिकर्सर एक्ट करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP from ADP and PI. that will be discussing it here. So oxidative phosphorylation हम लोग डिस्कस करेंगे, which is commonly called ox-phos. So this process of oxidative phosphorylation is a process in which there is synthesis of ATP. इसमें ATP की synthesis होती है from two molecules and those are ADP and PI. एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन करते हैं तो वो ATP बनता है. Now this process of ATP synthesis or oxidative phosphorylation is actually dependent upon complex 5. ये complex 5 पे dependent होता है which is present in the electron transport chain, जो कि जैसे मैंने previous lecture में इसका figure बनाया था about electron transport chain का inner mitochondrial membrane में. So उस membrane में there was also a complex, मैंने एक complex draw किया था and that was complex 5, that was ATP synthase. मैंने ये भी बताया था कि उसके दो components होते हैं, एक FO component होता है and the F1 component होता है. So we'll be discussing it here in detail. So ये वो प्रोसेस है जिसमें हम ATP की सिंथेसिस कराते हैं from ADP and PI and with the help of a complex, and that is complex 5 from which is present in the inner mitochondrial membrane. Now ये जो complex 5 होता है, this complex 5 is actually the ATP synthase. Alright, so oxidative phosphorylation is actually a process of synthesis of ATP from ADP and PI with the help of enzyme complex called ATP synthase present in the electron transport chain. Now ये जो ATP synthase की जब हम बात करते हैं, so this ATP synthase complex is a component of two things. इसमें दो components होते हैं. So it has two components. One is the FO component which is present in the inner mitochondrial membrane, and this FO component is acts as a channel. ये एक channel की तरह act करता है for pumping protons from IMS to matrix. So this is actually the intermembrane space. This is inner membrane and this is mitochondrial matrix. So this is F1, FO. So जो ATP सिंथेस का कॉम्प्लेक्स होता है वो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होता है, एंड इसका जो FO कंपोनेंट है, दिस FO कंपोनेंट इज एक्चुअली एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन. ये इनर मेम्ब्रेन में होता है, एंड क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो पंपिंग था प्रोटॉन्स का, वो मैट्रिक्स टू IMS में पहले जा रहा था, मैट्रिक्स से IMS में जा रहा था, एंड मैट्रिक्स से IMS से में क्योंकि जो प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है एंड एक्यूमुलेट हो जाता है IMS में. सो ये जो पंपिंग होगा प्रोटॉन का वो फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में होता है. ऑलराइट, तो ओवरऑल मुझे ये बताना है इसमें कि भाई ATP की जो सिंथेसिस होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट पे डिपेंडेंट होती है. ऑलराइट, सो ये जो ग्रेडियंट डेवलप होता है ये हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ होता है. सो दिस मूवमेंट इज एक्चुअली द ग्रेडियंट डिपेंडेंट एंड दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट डिपेंडेंट होता है ये, एंड दैट इज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. तो इसमें प्रोटॉन की पंपिंग होती है फ्रॉम हाई टू लो, ये चीज़ हो जाएगा, दो प्रोटॉन का पंपिंग हुआ. एंड नाउ FO component की जैसे हम बात करें तो FO component is the component which is embedded in the inner membrane, while F1 component is the component which is present in the mitochondrial matrix. अब फंक्शन क्या होता है? FO component वो component है that acts as a channel. ये चैनल की तरह एक्ट करता है in order to provide a form or a channel जिसके थ्रू प्रोटॉन्स जो होते हैं वो from IMS to matrix पास कर सकते हैं.
ऑलराइट। ऑन दी अदर हैंड ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का जो F1 कंपोनेंट होता है, दिस F1 कंपोनेंट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेन साइट, और वी कैन एक्चुअली से इट एज कि ये मेन साइट होती है एटीपी सिंथेसिस की। सो दिस द मेन साइट और एक्चुअल साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस, जहाँ पे ये एटीपी की सिंथेसिस होगी। तो ये FO कंपोनेंट का फीचर हो जाएगा। इट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन विच प्रोवाइड्स चैनल फॉर प्रोटॉन मूवमेंट फ्रॉम IMS टू मैट्रिक्स। ऑन द अदर हैंड जो F1 कंपोनेंट है जो F1 कंपोनेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड इट इज द एक्चुअल साइट ऑफ ATP सिंथेसिस फ्रॉम ADP एंड PI। तो ये दो कंपोनेंट्स हो गए। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि कितने प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी तो हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जो होता है वो मिलेगा। सो एज आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन इन दिस फिगर, इसमें जैसे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट ज़्यादा है। सो फॉर एवरी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटॉन्स that are being pumped from IMS to mitochondrial matrix, 1 molecule of ATP will be synthesized. Now this proton movement is actually dependent on electrochemical gradient, कि मैंने आपको already बता दिया है कि ये जो movement होता है, this movement of proton is actually dependent on electrochemical proton gradient, and that is from high proton gradient to low proton gradient. All right. So for every 2 molecules of proton that are being pumped down their electrochemical proton gradient, this term is important, electrochemical proton gradient, that is from IMS to matrix, 1 molecule of ATP is synthesized। यानी कि हर 2 प्रोटॉन के पंपिंग में 1 molecule of ATP जो होती है वो synthesize होती है। So this was about oxidative phosphorylation process, जिसके थ्रू ATP की synthesis होती है। The next topic which we'll be discussing is the respiratory balance sheet। कहने का मतलब ये कि जो पूरा entire process था, यानी कि ये जो पूरे aerobic respiration का process जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें actual amount of total amount of ATP कितनी synthesize हो रही है, so that actually is that we will be dealing in the respiratory balance sheet वाले टॉपिक में वो हम ऑलराइट। सो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में हम डिफरेंट स्टेप्स में जो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो स्टेप्स था उसमें कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ईच स्टेप में रिलीज हो रहा है, वी हैव रिटन इट हियर। ऑलराइट, तो इसमें अगर हम देखें तो ग्लाइकोलिसिस में हमारा जो नेट रिजल्ट था दैट वाज 2 ATP एंड 2 NADH। सो 2 ATP will remain the ATP itself, एंड इसमें जो 2 NADH था, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि NADH जब रीऑक्सीडाइज होता है इन प्रेजेंस, जब NADH एंड FADH2 को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिलती है, सो इट गेट्स रीऑक्सीडाइज्ड। सो उस रीऑक्सीडेशन प्रोसेस में जब एक NADH जब रीऑक्सीडाइज होता है तो वो 3 ATP के मॉलिक्यूल्स को रिलीज कराएगा, एंड 1 FADH2 ऑन रीऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस 2 ATP मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे क्योंकि 2 NADH हैं, सो इट विल काउंट फॉर 2 into 3 यानी कि 6 ATP ये बनाएगा। पायरुविक एसिड, सो ये जो बीच का इंटरमीडिएट स्टेप था दैट वाज द लिंकेज स्टेप बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, उस वाले स्टेप में हमें 2 NADH मिलता है, राइट। सो इट विल बी अ टोटल काउंट ऑफ 2 into 3 6 ATP हो जाएगा। सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल में हमें टोटल 6 NADH मिलता है, ऑलराइट। 6 NADH दैट मीन्स 6 into 3 18 ATP हो गया। 1 FADH2, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि एक FADH2 को रीऑक्सीडेशन में हमें 2 ATP चाहिए रहती है, सो दैट विल बी 2 into 2 यानी कि 4 ATP यहाँ पे हो गया, एंड हमें एग्जैक्टली उसमें 2 ATP मिलता है, सो दैट काउंट्स फॉर 2 ATP। सो 2 + 6 + 6 + 18 + 14 + 2 अकाउंटिंग इट अ टोटल ऑफ 38 ATP मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमें पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे में मिलते हैं, ऑलराइट। नाउ दिस ये जो 38 ATP मॉलिक्यूल्स जो हमें एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे में मिलता है, इसमें से जो 2 ATP होते हैं दे आर यूकैरियोटिक सेल्स में, वो 2 ATP दे आर एक्चुअली यूटिलाइज्ड इन ट्रांसपोर्टिंग द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस टू द क्रेब्स साइकिल। तो जो 2 NADH यहाँ मेरा बनता है, इस 2 NADH का ट्रांसपोर्टेशन हमें माइटोकॉन्ड्रिया में करना ज़रूरी है,
ऑल राइट. सो उसके ट्रांसपोर्टेशन में फर्दर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जो होता है वो यूटिलाइज हो जाता है. सो वी कैन कंक्लूसिवली से कि अ टोटल ऑफ 36 ATP मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं. तो हमें जो नेट गेन मिलेगा एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस में दैट वुड बी ऑफ 36 ATP molecules. All right, so this was about respiratory balance sheet. Now we'll be discussing about the differences between differences क्या होता है fermentation and aerobic respiration. सो फर्मेंटेशन एज वी ऑल नो कि ये एक वो प्रोसेस है जो कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है. एंड इस प्रोसेस में फर्मेंटेशन में पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का टू यील्ड ऑर्गेनिक एसिड्स और एल्कोहल. व्हाइल इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. इसमें ऑक्सीडेशन का ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है टू यील्ड CO2 एंड H2O. यहाँ पर जो नेट गेन होती है एनर्जी की दैट इज ओनली ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स. सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे नेट गेन ऑफ एनर्जी होता है क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेटरी मोड ऑफ पाथवे होता है. व्हाइल हियर द नेट गेन ऑफ एनर्जी इज 36 ATP मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे टोटल 36 ATP मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं. ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे को इन्वॉल्व नहीं करता है. व्हाइल एरोबिक रेस्पिरेशन हैज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ So it has an involvement of electron transport system. तो ये basic differences हैं between fermentation and aerobic respiration which is very important. Fermentation as we all know कि भाई ये क्योंकि anaerobic respiration mode anaerobic mode होता है respiration का, so there is partial oxidation of glucose and here the glucose is completely oxidized to yield CO2 and H2O. यहाँ पे net gain हमें सिर्फ 2 ATP molecules की मिलती है. There is a net gain of energy of 36 ATP molecules and this fermentation process it does not involve the electron transport chain या electron transport system को ये involve नहीं करता. On the other hand aerobic respiration has an involvement of electron transport system. So this was about the 3 topics that we have dealt today, which is oxidative phosphorylation, the respiratory balance sheet and the differences between fermentation and aerobic respiration. In the next lecture we'll be dealing about the amphibolic pathway. हम लोग amphibolic pathway के बारे में डील करेंगे कि what is amphibolic pathway और क्यों respiration को हम collectively catabolic pathway नहीं बोल सकते हैं. It is actually collectively called as an amphibolic pathway as to why, क्यों. And we will also be dealing with another topic which is respiratory quotient or respiratory ratio जो कि जब हम अलग अलग different respiratory substrates को use करते हैं. So that's all for today. Thank you.